हेलो सर। हेलो। Good morning, everybody. We are going to start our session within 2 to 3 minutes. So, if I am audible to you, just mention yes in the chat box. We will wait for 2 to 3 minutes.
So, good morning, everybody, once again. And now we are going to start our session. But the constant is if I am audible to you, just mention yes in the chat box. And meanwhile, I'm sharing a screen with you. Okay. So, if this screen is visible to you, just mention yes so that so that we can start our session. So I think majority of you are getting my voice and the screen also, right? So in the previous session, what we are discussing about is there was a meeting in 1943, right? So let us go in the past, right? तो हम क्या करेंगे आज जो है वापस से उस मीटिंग में चले जाएंगे और उनके जो सजेशंस है उनके जो गाइडलाइंस है वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे. So what they have done in the 1943, right? 1943, they have done one meeting in which city? Nagpur city, right? Here you can see the Nagpur city. So in the Nagpur city in 1943, they have divided the roads into four categories, right? For the highway development in India, right? So they have decided that first of all we will classify the road into four categories: national highway, state highway, district road, and village roads. So national highways, you are aware about it. It is a connecting road between the important strategic location, administrative locations, and other economical activity hubs, right? So that are across the country that are referred as a national highway. Along with the state highway, in the state highway, the main roads which is connecting two states, right? So important cities of two states are connected by the state highways. Meanwhile, if you are in a district, so the important places, let us say for the economical activity, for the infrastructure point of view, for the administrative point of view, the road connecting the important cities or important towns of a particular district, right, are referred as a district roads. That is the definition of the district road. And the village road, that means it is the connecting road between two villages. So these four categories are developed, and the one task is given to you that you need to identify a strategic location, right? So strategic location is there, and one is an administrative location or institute, you can simply say, right? So the task is simple given to you. You need to find out the strategic location in your country, in your city, in your district, or in your state, right? So let us ask somebody so that will have an idea, right? So Shivraj Jadeja, I will ask only once. Okay, if you are not responding, don't worry about that. Okay. Then Rajkumar. Yes, sir. Huh. What you have done in the task given to you? What is Uh, your summary? sir, નથી કર્યું એ. Okay, so this is not the right way to learn something, right? Uh, Most probably you can. There is a no surprise if you fail in this subject also. Okay, for 1 marks or 2 marks or 5 marks or whatever it is, right? Because your attitude and your learning behavior shows that, right?
आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आपको जो है आंसर नहीं पता है और आप सिंपली कह दे तो हमने नहीं किया है, નથી કર્યું. So नहीं सर, that yes, that attitude will cause a failure, right, in this subject also. So now you have time. You just prepare yourself for learning, okay, and you can start learning from now. Or you start preparing for that also. Otherwise, I'm guaranteed you will fail in internal. ये Okay. हाँ. पवन कुमार शाह, आपने क्या किया है? यस सर। आप बताइए. पवन. हेलो। हाँ बोलिए. सर जैसे कि सर्च किए थे हम्म. RWD मतलब कि रोलर वर्क डेवलपमेंट होता है सर। उसमें ये सब कौन सा मतलब कि वर्क चल रहा है, कौन सा वर्क कहाँ पे है, किस तरह है। नहीं, मैं लोकेशन के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे. आपको ये बताना है कि आप बिहार में रहते हो. यस तो सर। आप, हाँ, आपका बिहार में आप रहते हो और आपका जिला कौन सा है? भोजपुर जिला। भोजपुर जिला. तो आपको ये बताना है कि भोजपुर जिले में इम्पोर्टेंट सिटीज क्या है या फिर इम्पोर्टेंट टाउन क्या है, जहाँ से ये पूरे जिले का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहीवट आप बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, आदार प्रदान आदेश देते हैं, ठीक है, वो लोकेशन कौन से है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ. सर आ रहा है सर। आरा है. आरा किसके लिए है? मतलब कि वहाँ पे सारा चीज जो है कि ये थी। आरा क्या है, सिटी है या टाउन है? टाउन है सर। टाउन है, ओके. वो किसके लिए फेमस है, मतलब एक्टिविटी कौन सी होती है वहाँ पे, इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ या पे क्या सर है वहाँ जैसे पे? कि सारे चीज जैसे जेल कोर्ट वोट वगैरह होता है, वो सारा चीज है। ओके, अब बिहार के बारे में बताइए कि बिहार का जो कैपिटल है, कौन कौन सा है बिहार का कैपिटल? सर पटना है। नहीं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं. पटना है सर, पटना। पटना है. तो पटना हाँ। के बारे में, हाँ, आप बताइए कि वो स्ट्रेटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है. वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है सर। अ, और सर बिहार का राजधानी है सर, वहाँ पे सारा चीज अवेलेबल होता है सर। नहीं, सारी चीजें तो कौन बताता है, वो तो नॉर्मल भी बताएगा, वहाँ वहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन आप टेक्निकल पर्सन है तो आप उसके हिसाब से आपको आंसर देना है. सारी मतलब क्या, मैं क्या समझूं टेक्निकल भाषा में? जैसा कि सर वहाँ पे हर एक चीज का मतलब डिपार्टमेंट है सर। जैसे कि हम्म. कंस्ट्रक्शन हो गया। अ, हम्म, ओके. आप सभी जो है एक टास्क कर लेना, ठीक है, आप गूगल मैप में जा सकते हो और गूगल मैप में नेशनल हाईवे दिखाता है आपको, ठीक है. तो वो जहां जहां से पास होता है वो लोकेशन आपको मुझे बताना है, सिंपल एज दैट.
कि बिहार में कौन से आपको मतलब ये मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए ये बिहार है सपोज, तो हमारे एंट्री पॉइंट्स क्या है? अगर मुझे बिहार में एंटर होना है तो कौन से रास्ते हैं जो मुझे बिहार के अंदर ले जाएंगे? ठीक है, तो बिहार जैसे आपका लोकेशन है तो मतलब इस तरह से एंट्री पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यस सारे सर। हाँ, तो यही आपको सिर्फ करना है। समझ में आए? ओके फाइन, चलो अब किससे पूछे हम? करण कुमार चौधरी, आपने कुछ किया है वर्क? हाँ सर। हाँ बताइए, क्या सर? टास्क जो आपको दिया था। सर कल मैं अच्छे से कल क्लास नहीं किया। हम लोग के यहाँ सर सरस्वती पूजा का कल पूजन हो रहा था, तो उसी में सर थोड़ा बिजी था सर। हाँ, लेकिन आपका पूजन तो यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी पूजा करोगे उसकी मीनिंग नहीं होती है ना। आपने ये काम सर। नहीं किया और अब बोल रहे हो पूजा करने गया था। काम नहीं करने सर, के हम बाद लोग जाओ, यहाँ कौन मना करता है? तो उसका मीनिंग ही नहीं रहता आप जो भी करते हो, क्योंकि आप अपना काम तो खुद से नहीं कर रहे हो। क्या ही बताएं हम आपको अब। दीपेश, दीपेश भुआ, યસ સર. હા તમે કઈ કશું કર્યું છે? ટાસ્ક તમને આપ્યું છે? ના સર, લગ્નમાં હતો. અરે વાહ, કેવો સરસ જવાબ આપ્યો. સુજાલ ખૂટ જો નીકળી ગયા. અમિત સખિયા, યસ સર. હા શું તમે ટાસ્ક કર્યું છે? આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું છે? બોલો. નથી પેલું હોય કર્યું સર. કયો તો આપણે પૂછીએ, નહીતર પછી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ચાલો ન કરે ના પડે તો આગળ વધીએ. નથી કર્યું સર. ટાસ્ક શું આપ્યું હતું તમને એ ખબર છે? આ આપણે આ રોડ ને ક્યાંથી નીકળતા હોય ને મેઇન શું હોય એ બધું જોવાનું. હા હા, એટલે તમે જોશો નહીં, સમજશો નહીં કે ક્યાં કનેક્શન છે. એ ગુજરાતમાં આપણે એ છે, ગુજરાતના એન્ટ્રી પોઈન્ટ ક્યાં તમે એ લો તો ક્યાં કનેક્શન છે. એ ગુજરાતમાં આપણે એ છે, ગુજરાતના એન્ટ્રી પોઈન્ટ ક્યાં છે. અને એ તમે લોકેશન ના જોવો તો તમને સ્ટ્રેટેજિક ઇન્ફોર્મેશન ના મળે. જે આપણે આની ડિસ્કશન કરીએ છીએ, તમને અહીંયા વર્ડ જે છે સ્ટ્રેટેજિક લખ્યો છે ને, એ તમે મેપ જોશો ને તો જ તમને ખબર પડે કે સ્ટ્રેટેજિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે છે કયું લોકેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાર્ડલી 10 મિનિટ થાય, બહુ તમે વધારે જો તમને કઈ કશું ન ખબર પડતી હોય તો. તો આ વસ્તુ જે છે તમારે ધ્યાન રાખવાની ખાસ. ચાલો વાંધો નહીં, ધ્યાન રાખજો પાછું આમાં પાછું, કારણ કે તમે આવો છો એ મોટી વાત કહેવાય, બીજું તો બધું સાઈડ છે. ઓકે ચાલો, હવે કોણ બાકી બચ્યું છે આપણા? કારણ કે સી જો વેન એવર આઈ એમ આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન, કે તમે તમારું તમે જે વાત કરો છો એના આધારે તમારું વસ્તુ જે છે તમારું લેવલ ડિસાઈડ થઈ જાય, રાઈટ? સો એમ કયો સાહેબ કે સાહેબ મારે આ નહોતું થયું, એટલે આ મને તો ખબર છે પણ તમારા બધા સાથી મિત્રોને ખબર પડે કે આને ટાસ્ક અપાય નહીં કાંઈ, રાઈટ? કારણ કે જે વસ્તુ શીખ્યા છે એ વસ્તુ તમે કહેવાની છે. જે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમે કરતા રહો કામ તો તમને ઇઝીલી બધી વસ્તુ ખબર પડશે. ઓકે, yes Jainab, I am coming back to you, but just ask me some other people so that I can have a brief overview. જે લોકોને આવડે છે એના માટે તો બધા રસ્તા ખુલ્લા છે, રાઈટ?
આપણે એ વસ્તુ કરવાની છે કે જેને નથી આવડતું, जिसको मालूम नहीं है, जिसको कुछ कुछ चीजें मालूम पड़ती है, जिसको समझ में नहीं आता, उनको हमें बोलते करना है, ठीक है, उनको हमें आंसर देते करना है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट पर्सन that having the capacity but they are not utilizing. ओके जिसकी कैपेसिटी तो है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, उसको मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, और उनसे उनका आंसर सेम ही होगा लगभग, ठीक है. और कुलदीप. યસ સર. હા તમે શું કર્યું છે સર ટાસ્ક? હા સર મોબાઈલમાં કાલ ચાર્જિંગ હતું ને તો નથી જોયું સર. લાઈટ જતી રહેતી ને તો. આ કોઈ એક્સક્યુઝ ના કહેવાય કુલદીપ, બરોબર. ઓકે સારું ચાલો, એટલે તમે જો કે હું બાનું લઈ આવો. ચાલો છોડો. તો ઇન સેન્સ એવું થાય ને કે મોબાઈલ વગર તમે રહ્યા હશો તો કઈક ક્રિએટિવ આઈડિયા તો હશે તમારી પાસે. શું વિચાર્યું? લાઇટ નહોતી, પાવર નહોતો, પછી ચાર્જિંગ નહોતું, તો કઈક નવું તો વિચાર્યું હશે ને? એવું કઈ નહીં. જો આ એટલા માટે તમને કહું છું કે તમારી પાસે હજુ ટાઈમ છે. યુ हैव ए टाइम. अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो अच्छे से करना स्टार्ट कर दो. उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है. टाइम इज रनिंग फास्ट. कब आपके 6 सेमेस्टर, कब आपका डिग्री खत्म हो जाएगा, कब आप मार्केट जो आपको पता ही नहीं चलेगा. ओके सो रितेश कुमार चौधरी, आपने काम किया है? यस सर. हाँ बोलिए. सर बिहार में सर कुछ इम्पोर्टेंट जगह है जो कि हम उसको ज्यादा जैसे कि सर हम बिहार में जो इम्पोर्टेंट जगह है दरभंगा जिला है, ऐसे, और मुजफ्फरपुर है, पटना है, और सर गया भी है. ओके उस प्लेस का इम्पोर्टेंस क्या है आप मुझे ये बताइए. गया जो है आपने बताया, या फिर मुजफ्फरपुर आपने बताया. सर गया में जैसे कि बुद्ध भगवान का वो इसके अलावा आप ऐसा कह सकते हैं कि वो आप जो है मतलब पिलग्रिमेज है जो भी है, ठीक है, यात्रा होती है या फिर कहीं पे भी आपका कोई फंक्शन होता है, तो वो लोकेशन जो है उसको जोड़ के रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि फेस्टिवल आएगा तो फेस्टिवल के टाइम जो है, जैसे कि बुद्ध जयंती आ गई या फिर कोई उसके रिलेटेड फेस्टिवल आ गया, तो लोग वहां पे अट्रैक्ट होते हैं. तो अट्रैक्ट होते तो वहां पे रोड होना चाहिए, तो हमें कनेक्शन वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा. आभास आप कुछ हाँ बता सर. रहे थे. हाँ हाँ सर. हाँ प्रेजेंट. हाँ सर. हेलो हाँ बोलो. सर रुको. हाँ आभास आभास. हाँ हाँ सर, मेरा जो सिटी है ना वो सिवान डिस्ट्रिक्ट आता है बिहार के अंदर. और वहाँ का सबसे फेमस होने का कारण है कि हमारे जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे ओके सिवान जिला से बिलोंग करते थे. और सर सिवान में बहुत सारे फेमस फेमस मंदिर भी हैं, जैसे कि महेंद्रनाथ टेम्पल है, रघुनाथपुर है, भिखड़ बांध है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिवान में फेमस है. और एक तो एक है कि सर जो सिवान है वो पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था. वो ओके बेटल वो 1765 ईस्वी में वो एक युद्ध हुआ था जहाँ की सिवान ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था. 1857 ईस्वी में. ओके ओके एंड अगर मैं सर कहूँ कि सिवान में कितने विलेजेस हैं, तो हमारे सिवान में पूरे
जो विलेज है वो 1530। ओके, वेरी नाइस। राइट राइट। एंड अगर सर मैं पूरे बिहार की पॉपुलेशन की बात करूं ओके तो वो 12 करोड़ एंड 47 लाख ओके 99,926। okay, very nice, very nice. So we are discussing these points, right? So how many villages are there, the number of person living in that state? Okay, और कुछ बताना चाहेंगे? Yes, हाँ सर, Vipal, I am coming back to you. अगर दीपक सर मैं कुमार। अपने पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की बात करूं सर, तो वहाँ पे है जो कि 33,30,464 पॉपुलेशन है वहाँ पे। ओके जो सर उसकी स्क्वायर है वो 3,807 स्क्वायर मील है उसकी एरिया पूरे हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, राइट राइट। ओके, वेरी नाइस। अगर जस्ट ए मिनट, अगर आप ऐसे ही धीरे 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 काम करते जाएंगे तो आपका जो नॉलेज का लेवल है, आपकी जो स्किल है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है? क्योंकि जैसे आभास ने काम किया, ठीक है, वैसे आप जो बिहार के सभी है उनको भी यही काम करना है, ठीक है? कि उनको पता है कि क्या है। फिलहाल जैसे कि मैंने महीने बाद पूछा तो वो भूल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने किया तो है काम, ठीक है? कि पॉपुलेशन कितनी है, समथिंग 12 करोड़ है, ठीक है, वो उतना जो है इनफ है हमारे लिए, ठीक है? लोकेशन इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो मंदिर बता रहे हैं या फिर कोई भी जो आपका लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे पिलग्रिमेज अट्रैक्ट होते हैं। आप सोचिए जरा, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जहाँ सॉरी मध्य प्रदेश में, जो मतलब कुंभ का मेला जो होता है, ठीक है, उज्जैन में, तो आप सोचिए वहां अगर रोड नेटवर्क नहीं है तो आप क्या हालत होगी, आप बताइए। उज्जैन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, चार अलग अलग जगह पे होते हैं कुंभ के मेले, ठीक है, मतलब कुछ समय के बाद, लंबे समय के बाद कि उज्जैन वापस आता है, ठीक है? तो अब कुंभ के मेले जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है? मैं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो कुंभ का जो लोकेशन है, चारों चार उनको कनेक्ट करना इम्पोर्टेंट। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए, और दूसरे जो भी अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्पसेस है, जैसे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, जहां से वाटर रिसोर्सेज ज्यादा है वो वाले लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए। जहां पे पानी की कम है, पानी की क्या बोलते हैं, कमी है, ठीक है, जहाँ पीने लायक पानी नहीं, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई कीजिए। और जहाँ पे पानी है वहां से लेके पानी नहीं है वहां तक एक रोड बनाइए, ताकि वो लोग वहां जाके एटलीस्ट पानी की जो है बेसिक सुविधा है वो ले सके, ठीक है? तो उस टाइम जो है किसी को पता नहीं था कि कितना लोकेशन है, मतलब क्या लोकेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने प्लानिंग करके स्टार्ट किया। अगर स्टार्ट किया तो आपको रास्ता मिलता जाएगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग फॉर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ओके, अब जो है बीच बीच में जिन्होंने भी, अरे हाँ, हैंड रेज किया है, हैंड रेज किया है, उसका हम लेते हैं जैनब पहले, ठीक है? जैनब, अब विलिंगनेस है, आप बता सकते हैं, ठीक है, जिसको भी बताना है, इम्पोर्टेंस है कुछ भी। यस यस, जैनब इज देयर? ને સર હા હા, જૈનબ, હા, તમારે કશું કહેવાનું હતું? एड फ्यू पॉइंट्स, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर इसमें समझेंगे नहीं तब आपके लिए ये सारे प्लान्स फेल है, ठीक है? यस, जैनब, नॉट ऑडिबल। ओके, कमिंग बैक टू यू। यस, दीपक कुमार चौधरी, यस, वेरी नाइस। आप बता रहे थे कुछ, चला, आई एम हेलो कमिंग टू हेलो। यू। दीपक कुमार, यस, हेलो आप सर। बताइए। हाँ, सर बिहार है जो एक सर प्रेसिडेंशियल बंगाल का एक भाग है सर, जो 1912 में सर बिहार बिहार उसका बंटवारा हेलो हुआ तो बिहार बना। સર नाइन હવે આવે છે सर અવાજ? 1936 में सर बिहार से उड़ीसा बना सर, और 2000 में झारखंड बना सर। हाँ हाँ हाँ,
एरिया सर बिहार का नॉर्थ दिशा में सर नेपाल है, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और साउथ में झारखंड, और वेस्ट वेस्ट में उत्तर प्रदेश। हम्म। और सर जो बिहार के नेशनल से जो बाउंड्री है, बिहार का जो बाउंड्री है वो नेशनल से केवल नेपाल ही से एक टच में है सर। तो और वो उसके हमारा, बाद हाँ, आप सोचिए, अब बिहार का जो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जिला बॉर्डर के पास में है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है, तो पहला अटैक जो पहला जिला है उस पे आएगा। ठीक है, जो भी है मतलब तो कोई भी अगर कंट्री जो है हमारे पे अटैक करना चाहता है तो वो नेपाल से आ सकता है। ठीक है, सो इट इज बेटर दैट वी नीड टू टाइटन द सिक्योरिटी एज वेल एज द स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर आल्सो देयर, राइट। तो वो जो प्लान है उसको हमें मतलब जो भी पंजाब हो गया, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पे भी है, वो सारे हमारे आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्योंकि वहीं से तो हम हमारी मूवमेंट करते हैं, सेना की मूवमेंट है, ठीक है, वहीं से हम प्लान बनाते हैं, सैटेलाइट में देख के हम लोकेशन डिसाइड करते हैं। सो उस लोकेशन को कनेक्ट करना अति आवश्यक है। ये टाइप के रोड जो है वो बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना, मैं यहाँ पे चेक बॉक्स में लिख देता हूँ। जो बॉर्डर के रोड है, ठीक है, बॉर्डर रोड, बी आर, आपको बोल सकते हैं BRDG, BRO ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि वो जितने भी बॉर्डर एरिया पे है वहीं पे रोड बनाएंगे, ठीक है, और उनका रोड की जो क्वालिटी होगी वो टॉप लेवल की बनाएंगे, ताकि जो है कभी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन यानी कि वॉर सिचुएशन या फिर कोई भी अटैक के टाइम जो है हम उस रोड को एज ए डिफेंस यूज कर पाए, ठीक है, या फिर इन अटैकिंग स्ट्रेटेजी में भी हम यूज कर पाए। ओके, तो दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। मैंने आपको इंडिया का एक मैप दिखाया था, वो सिक्किम के पास पास जो है वो आपको लोग जूम करके बताया था कि ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, ओके दीपक, और कुछ? और सर जो बिहार में सर 38 जिला है, जिसमें से 7 जिला सर नेपाल से सटा हुआ है बाउंड्री में। जो ओके, किशन आउट ऑफ 38 7 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। ये ओके, सर, और इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से सटा है: किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ऐसे सर 7 जिला है। ओके, 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 और ऐड कर सकते हैं आप? ये सर बिहार का जो लार्जेस्ट सिटी है वो पटना है सर। वहाँ पर हिस्टोरिकल पैलेस ज्यादा है सर। यस, यस। आप अगर आप वहाँ भारत से का जो है इतिहास आप पढ़ेंगे किसी भी बुक में, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें पटना का जिक्र ना हो। ठीक है, पटना इज ऑलवेज देयर इन द हिस्ट्री बिकॉज इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। ओके, सो मेनी थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू जस्ट थिंक अबाउट द पटना। पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और यस यस उनका भी एक अलग इतिहास है, ठीक है, तो आप खुद जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बिहार से क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि हमारे जो गुजरात के हैं वो भी समझ सके। ठीक है, तो सिमिलरली आप गुजरात में हैं तो गुजरात वालों से मैं पूछूंगा तो आप उनका भी समझ सकते हैं। ठीक है दीपक, और कुछ इसके अलावा? बिहार की लिटरेसी है जो सर मेल का वो 73.39% और फीमेल का है जो 53.33%। Yes, yes. So it is a very important thing. So we are discussing about locations. Okay. So literacy rate will you can say that it is not a part of our discussion, right? So simple यस is that we will keep the simple. What are the strategy location? आपने जो बताया कि सर 38 जिले हैं, उसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो बॉर्डर पे आते हैं, तो वो यस सातों जिलों जो है वो स्ट्रेटेजी लोकेशन है, उस जिले का सेंटर पॉइंट तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा हमें नेशनल हाईवे से। यस ओके, ओके, वेरी नाइस। अब बाकी कौन है? संतोष सर कुछ बता रहे थे। हाँ जैनब, आई एम कमिंग टू यू। ओके। जैनब, आई एम कमिंग टू यू। संतोष, आप कुछ बता रहे थे, यस सर। आप बोलिए। हाँ, सर मैंने अभी एक स्टडी किया कि सर वो हम लोगों के बिहार में जो है सर वो रोड का जैसे नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, वो बहुत स्लो से प्रगति कर रहा है सर। जैसे सर मैंने अभी देखा कि 2018 में जो सर नेशनल हाईवे जो अथी हुआ था सर, उसका मैंने देखा तो सब 48,877 किलोमीटर तक वो अथी किया,
काम को कंप्लीट किया, हम्म। उसी की फीस अगर ये 2019 में जाता है सर, हम्म। तो सर ये 2019 में जो है सर वो 5358 किलोमीटर ही वो सर अथी कहता है सर। अगर सर इसका हम बैक अगर इसका डिस्टेंस निकाले तो सर बहुत ही कम, जैसे मिनिमम सर ये 700 किलोमीटर ही 1 ईयर में सर ये प्रगति कर रहा है सर, कंप्लीट वर्क कर रहा है सर हम लोगों के बिहार की तरफ, इतना स्लो चल रहा है सर। हम्म। उनके तो साथ ही सर हाँ जैसे बताइए। स्टेट हाईवे देखिएगा सर, तो हमारे बिहार में सर स्टेट हाईवे 230 किलोमीटर तक की है सर। उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, वो हमारे यहाँ महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में है सर, ये सबसे लंबी पुल है सर। ओके। ये 5.575 किलोमीटर का है सर। ओके। और इसमें से अगर हम देखें सर, इसका लागत भी बहुत ज्यादा, बिहार में अगर सबसे मोस्टली लागत हो तो सर इसी में है सर, 20 राइट। करोड़ से प्लस सर इसमें लागत है सर। ओके। और राइट सर राइट। हम्म। और जिस जिले में मैं रह रहा हूँ सर वो मधेपुरा, अगर उसका मैंने अगर देखा तो उसका पॉपुलेशन ये बहुत ज्यादा है, उनके बाद एरिया कम है, उनके बाद सर उसमें कुछ फॉरेस्ट आ जाते हैं, राइट राइट। और उनके बाद सर हम लोगों का जो बिहार है सर, ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नियरेस्ट नेपाल पड़ता है सर। लेकिन हम ओके। लोग का जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है सर, वो कंस्ट्रक्शन कोई हाई लेवल नहीं चल रहा है सर। तो ये सारा चीज वो वेबसाइट पे देखा सर, और एक हाँ। वेबसाइट भी मैंने देखा जिसका नाम है RWD, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, ये बिहार का सर है सर, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर है ये नितिन जे गावेदकर है सर। हम्म। यस, ओके फाइन। रूरल वर्क डिपार्टमेंट। रूरल वर्क डिपार्टमेंट सर। ओके, रूरल जो है वो अलग होता है, रूरल आप बोलिए, ठीक है। रूरल मैंने यहाँ पे लिख दिया है चैट बॉक्स में। ओके ओके, वेरी नाइस। चलो, तो आप इसी डिस्कशन में तभी पार्ट ले पाएंगे तब आपने कुछ देखा होगा, कुछ इंटरनेट पे सर्च किया होगा, ठीक है। यूज में सर। ओके, अनंत कुमार आप बताइए। हाँ। हाँ सर, वो सर मेन लोकेशन सर, जैसे बिहार में सर वो सर पटना सर एयरपोर्ट है सर, और पटना सर वो एक स्टेशन है सर, जिसे मतलब हर स्टेट में सर आप वहाँ से सर ट्रेन पकड़ सकते हैं और जा सकते हैं। ओके। और सर वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, और सड़कें हैं जो हम कहीं भी मतलब वहाँ से जा सकते हैं, ट्रेन है, एयरपोर्ट्स है। और वहाँ पर एक सर गुरु गोविंद सिंह जयंती होता है जो बहुत ज्यादा मतलब फेमस है, और वो वहाँ पर जनसंख्या कुछ काफी है सर पटना में। राइट राइट। और सर तो बिहार का एक हाँ, सर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट सर जो लोकेशन है उसका सर रेलवे इंजन सर वहाँ पर बनता है, वो भी सर फेमस है मधेपुरा का। हाँ वही आपको ऐसे ऐसे लोकेशन आपको फाइंड करना है कि जैसे मतलब अगर मुझे रेलवे को डिस्ट्रॉय करना है, सपोज मान लीजिए, ठीक है, तो हाँ वो एक स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस है कि मैं अगर वॉर की सिचुएशन हुई और मैं दूसरे देश से आया हूँ तो मैं सबसे पहले क्या क्रैश करूंगा। हाँ सबसे पहले आपके जो हवाई अड्डे है, ठीक है, हाँ वॉर में एयरपोर्ट यही है। होता है। हाँ, वॉर के सिचुएशन में विनिंग और लूजिंग साइड कब डिसाइड होती है कि जिस देश के ज्यादा हवाई अड्डे डिस्ट्रॉय हो गए, हाँ उसके आधार पर हाँ कौन कौन सा कंट्री जो है वो वॉर जीता वो डिसाइड होता है। हाँ तो सारे हमारे एयरबेस जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सारे जो हमारे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, हाँ रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग है, बोगीज जहाँ पे बनती है, तो दिस ऑल आर आवर स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और कुछ? सर वो सर बिहार में सर एक नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी सर फेमस है। और सर यस। सर हम अपने भोजपुर जिले की बात करें तो सर वो मेन सिटी सर आरा है, और राइट। आरा में सर वो एक और रामना मैदान बोला जाता है, मतलब कोई भी वो मतलब एक एयरपोर्ट जैसा ही है, छोटा सा है, कोई मतलब कोई भी जो हेलीकॉप्टर हो या कोई फाइटर जेट भी आता है तो वहां पर होता है। जैसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पर, तो रामना मैदान में ही गए थे। वहां पर एक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी है जो भोजपुर जिले में फेमस है, वो यूनिवर्सिटी है। वो वीर कुंवर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उन्हीं के नामों पर वो यूनिवर्सिटी सर बना हुआ है। Okay, so when you are discussing about the strategic location, we are always talking about the army point of view. Okay, so हम कोई भी वॉर होगा या फिर कोई भी अटैक होगा तो वो बाय रोड भी हो सकता है, ठीक है। एयर से तो होगा ही, लेकिन हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी, वो कहाँ पे बनानी होगी? बाय रोड, ठीक है। तो आपको सेना की मूवमेंट है, ठीक है, वो कैसे करेंगे? बाय रेल। यस, ओके। सो रेलवे नेटवर्क शुड बी देयर, रोड नेटवर्क शुड बी इन इफेक्टिव मैनर, ठीक है। सो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आपसे गांव के नाम जो है आपको बुलवा रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बुलवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीज जो है, ये जो पीपीटी में है, वो आप खुद भी पढ़ के सीख पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिलेगा। Okay, now we are turning to the Gujarat, okay, and one by one, those who are willingness to say, okay. So Jainab, ત્યાંથી ચાલુ કરીએ, Yes, sir. પછી આપણે હા. So it is Sir, better તમે that if it is better that if you keep it in Hindi, so because the Bihar people can also understand, right? Or otherwise you can keep it in English. okay. हिंदी में रखे तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्या है कि बाकी सारे समझ पाएंगे। Okay, sir. Sir, so yesterday we were talking about the number of cities, talukas, and districts in Gujarat. So I searched about it, and I found that in 2020 the list was like there were 225 talukas, 27 districts, and 242 towns in Gujarat. Okay. And there are and there are 18,544 villages in Gujarat. Okay. And sir, the other thing is that the main cities of Gujarat is Gandhinagar, but the import export business is mostly covered up in Ahmedabad, and even the transportation facility is mostly available in Ahmedabad only. So the main city of Gujarat is Gandhinagar, but we can say that Ahmedabad is the main city. Then, sir, there are a list of ports in Gujarat, from which Kandla port is the main port, uh, from where the transportation of waterways is done, and the other ports are Mundra, then Okha port of Porbandar, then Veraval, and Right. then there is Hazira port, and Surat, yes. one is that Sikka port. Okay. So what is the Jamnagar. importance of that ports? Sir, mainly it is important for transportation by waterways, like by ships and cruise. Okay. What else? Then, Any other information? Yes, sir. Sir, there in total, there there are 300 state highways, which spans 19,761 kilometers all over Gujarat, and there are 13 national highways in Gujarat, which spans 3,245 kilometers. Okay. This data you have collected from which website? Sir, from Google only. Gujarat Road Network Map and Maps of India. Okay. You just now compare the these digits with the, you can simply say, the MORTH, कि गुजरात की वेबसाइट में से जो आपको नंबर मिला, वही नंबर आपको वहां मिलता है कि नहीं? आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा कोऑर्डिनेशन कितना है, ठीक है। Okay, sir. Okay. And sir, there are three main industries of Gujarat, which one of them is chemical, then textile, and and jewelry industry, and the GDP is rupees 15.05 lakh crore of Gujarat. Okay.
Okay. So what are the strategic location of Gujarat? Strategic. Sir, like main cities of Gujarat from where all the Strategic. activities are carried If out. you think about the army point of view or any movement in case of emergency. Sir, it is mainly in Kutch because Kutch, some part of Kutch is connected with Pakistan, and all the other parts are not connected with any of the international boundaries. So, Kutch. Okay, સર fine. કહું So, એન્ડ yes, કહું yes. સર એન્ડ कौन? કોસ્ટલ એરિયા ઓલસો સર Okay, Kripal, yes. Okay. What do you have any interesting information about the strategic location? સર જામનગરમાં એક સર એરફોર્સનું એરબેઝ છે. One by one, so we will discuss in detail. Okay, first of all, yes, Kripal. સર કોસ્ટલ most important strategic location in Gujarat, sir, because many of the terrorists or any other movers will come from coastal area. So we first secure our coastal area at army strategic point, and we give our best from that area, so they not come. And sir, border area also come under this, like Kutch, Porbandar, and sir, their village run is also come, sir. And one air base in Jamnagar, it is also most important area for strategic. That's all, sir. Okay, Aniket, any points, Aniket? ના સર કૃપાલ કવર કરી લીધો એરબેઝ વાળો. ઓકે, તમારે વધારે કંઈ એડ કરવું હોય તો બીજું કંઈ હા તમારે? સર એડ કરી શકું. આપણે છે ને એક 2012માં એક NHI એક પ્રોજેક્ટ ફાઉન્ડેશન કર્યું હતું જેનું નામ છે ગોલ્ડન ક્વોડ્રિલેટર, જે 2012માં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. એની અંદર છે ને ઇન્ડિયાના બધા જ ઇકોનોમિકલ અને એગ્રીકલ્ચર હબ્સને કનેક્ટ કરે છે, જેની લેન્થ 5846 કિલોમીટર છે ગોલ્ડન ક્વોડ્રિલેટરની, જે ગુજરાતમાંથી પણ પાસ થાય છે, જેની અંદર અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરતને કનેક્ટ કરે છે. ઈ ઓલું જ ને સર, જેમાં કલકત્તા, સર, મુંબઈ, દિલ્હી અને ચેન્નઈ જોઈન્ટ થાય સર, ક્વાડ્રિલેટ સર બધા બનાવે. મેટ્રો સિટી તો કનેક્ટ કરે છે, પણ બધા સ્ટેટના આવી રીતે જે કોઈ હબ્સ હોય ને ઇકોનોમિકલ કે એગ્રીકલ્ચર એને પણ કનેક્ટ કરે છે ગોલ્ડન ક્વોડ્રિલેટરલ. Okay, so right now, anybody else wants to say their points? Otherwise, I am having my points. Yes. સર, આપણે એક સ્ટ્રેટેજિક નેશનલ હાઈવેના ઇમ્પોર્ટન્સમાં અમદાવાદ વડોદરાનો જે નેશનલ એક્સપ્રેસ વે છે ને એ કહી શકાય, કારણ કે એને નેશનલ એક્સપ્રેસ વે 1 નામ આપ્યું છે, જે આપણે 2003માં સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. અને ખાલી અમદાવાદ તો વડોદરા ડિરેક્ટ નથી, એમાં એક્ઝિટ આપ્યા છે નડિયાદ અને આણંદમાં, જેમ Okay, the voice is not reaching to us. Okay. આપણે આની જે કમિટી હોય ને એ લોકોએ કીધું છે કે એને 6 લેન્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે, એમ એની માટે એ લોકો વર્ક કરે છે. ને આપણે જેમ કહીએ કે નેશનલ એક્સપ્રેસ વેમાં 2 વ્હીલર્સ અલાઉડ નથી, ખાલી 4 વ્હીલર્સ જ અલાઉડ છે. ઓકે, બીજું કોઈ હેડ કરવા માંગે છે? Anybody? See, our country is located along the coastline. I'm sharing a screen with you, so you will just observe here, right? So enemies can enter from anywhere in our country, right? Yes or no? Enemies can enter in our country from anywhere from the sea. आप देख सकते हैं, देख रहा है? So all the points, आपको ये विजिबल है कि नहीं? आप मुझे ये पहले बताइए. Yes sir. ओके,
तो हमारा कंट्री है कि जहाँ कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हैं। और स्पेसिफिक इफ वी टॉक अबाउट गुजरात, आप देखिए गुजरात कितना लोकेशन जो है वो कोस्टल लाइन से कनेक्टेड है। तो कोई भी जो है यहाँ से अंदर आ सकता है हमारे कंट्री में, राइट। तो हमारे लिए कौन सा स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप मैं जहां पे भी डॉट करता हूँ सभी हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जस्ट ए मिनट, हाँ। ओके, सो ये सारा जो है, एक मिनट, हाँ। चलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे जो बॉर्डर पॉइंट है, ठीक है, जितने भी मैं डॉट्स कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वहां पे कोई भी लोकेशन हो, ठीक है, ये सारे जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको हमें कनेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर है जगह पे, वो कहीं समय पे हम पे अटैक हो सकता है, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ जितने भी डॉट्स रख रहा हूँ, ऑल आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन। आप देख सकते हैं बांग्लादेश की पूरी बॉर्डर जो है हमारे टच में है, ठीक है। तो ये सारे तो इम्पोर्टेंट लोकेशन है ही, और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला लोकेशन है, आप मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ये जो वाला है ना, यहाँ का जो लोकेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही एक लोकेशन है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कनेक्ट करता है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो आपको जैसे आप कुछ देख रहे हैं, आपको तो बेस में बदलना होगा कि यहाँ से सैटेलाइट जो है उसकी जगह आप यहाँ पे ट्रैफिक भी लिख कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पे आपको जब भी आप देखें कुछ, तो आपको ऐसे करना है, ट्रैफिक वाला जो है वो आपको करना है, या ट्रांजिट वाला, ठीक है। तो मैप तो आपको रही रखना है, और ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको करना है तो ट्रैफिक के हिसाब से, ठीक है, वो आपको लाइव ट्रैफिक इंडिकेट कर देंगे। तो जो है आप अब देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टैटिक लोकेशन हमारा ये है, सिक्किम वाला, जो ये वाला जो है, जहां से हमारी बॉर्डर जो है, ये वाला लोकेशन, ठीक है, आपको दिख रहा है सिलीगुड़ी जो है। और बेसिकली अगर इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इतना रोड जो है इतना, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, तो हमारी कनेक्टिविटी चली जाएगी, हमारे ऑलमोस्ट 7 राज्यों से कनेक्टिविटी चली जाएगी। सो वी हैव डिसाइडेड दैट, आपको ये अभी जो रोड नेटवर्क दिख रहा है वो अभी का है, ठीक है, लेकिन हम 1943 की बात करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिख दूं तब आपको बॉर्डर भी दिखेगी, राइट, ऑफ दैट। ओके, सो अब जो है आप जैसे जैसे जूम करते जाएंगे तो आपको पहले नेशनल हाईवे दिखना स्टार्ट होंगे। तो आप देखिए पैटर्न, देखिए आप, दिख रहा है। तो ये जो येलो कलर से जो हाईलाइटेड है, ये सारे रोड्स, ऑल दिस रोड्स आर द योर नेशनल हाईवे, यू कैन कंप्लीटली यू कैन सी। और जो भी आपको पहले दिख रहा है वो सारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दिख रहा है। जैसे आप जूम करेंगे और आपको लोकेशन दिखेंगे, सो ऑल लोकेशंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग ए डिस्ट्रिक्ट, राइट, इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर हब, ठीक। तो जब आप बिहार में चले जाए तो वहां भी ये सारे लोकेशन तो कनेक्ट हो गए, छतरपुर हो गया, ठीक है, आप देखेंगे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, ये जो भी है वाराणसी है, जौनपुर है, तो ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो वहां ये डिसाइड हुआ कि हम सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन ट्रेस करेंगे, उसके बाद जो है हम रोड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे जूम करते जाएंगे, लेटेस्ट से हम यहाँ पे जूम करते जाएंगे और आपको रोड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने पूरा जाल बिछा रखा है, देखिए अब और रोड दिखने स्टार्ट हो गए, ठीक है, दिख रहा है आपको। सो दिस इट वेरी इम्पोर्टेंट टू,
connect the road between two સર તમારો states, વોઇસ બહુ બ્રેક થાય between છે, two કઈ નથી districts, સંભળાતું. between two you can say states also. So you will find that, right? So you have lost connection. Okay, just a minute. I will connect. Hello. Now I think my connection was lost. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. 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 So કનેક્ટેડ છે, કપાય છે. ઓકે, આના પછીનો સેશન આપણો જ છે, એટલે rejoin all. Okay, so whenever I will complete that session, right, in another meeting. So because the recording point of view, I want two separate meetings, right? So हम क्या करेंगे कि ये जो सेशन है हमारा, इसके बाद हमारा ही सेशन है, ठीक है, एडवांस सर्वेइंग का। तो मैं वापस से आपके लिए 5 या 10 मिनट में आपको लिंक भेजूंगा। ये सेशन खत्म होने के बाद आपको सभी को लीव करना है और 5 या 6 मिनट बाद वापस सबको आना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, ठीक है? सो अब जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो इज इट फ्रूटफुल और नॉट? आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम डायरेक्ट पीपीटी पे ही चले जाएं? क्योंकि पीपीटी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपको ये जानना आवश्यक है। इसलिए मैंने टास्क के डिस्कशन बेस पे मैंने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है? पीपीटी तो क्या है कि पीपीटी आप खुद से देख के भी पढ़ सकते हैं, राइट? ओके, सो you just write down your roll numbers, but do not leave the meeting. Do not leave the meeting, because I have a few important instruction for you all of you that. Sujal Khut, you are not allowed. Yeah. Okay, so
you have left the meeting and you are not in the meeting. So you have written your number, that is right, but I will not give you the present. મીટિંગમાં હતો પણ ભૂલથી થઈ ગયો તો લેબ. એવું થોડું ચાલે મિત્ર, તો ભૂલથી મારે અટેન્ડન્સ નહીં આવે ને. ઓકે, ભૂલથી તમારે દર વખતે હું ઓબ્ઝર્વ કરું છું પછી જ તમને આપું ઇન્સ્ટ્રક્શન. તમે જે કઈ પણ વસ્તુ કહું ને એ ઓબ્ઝર્વ મેં કર્યું હોય ને પછી જ તમને કીધું હોય, બરોબર. જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછવાનો વારો આવે ત્યારે તમે લેફ્ટ થઈ જાઓ, પછી પાછા તમે આવો છો 3 મિનિટ બાકી હોય ત્યારે પાછા આવો. દરેક સેશનમાં આ જ તમારી મેથડ છે, એટલે બરોબર. એટલે હવેથી જે છે હું એક જ વાર પૂછીશ, તમારો રિસ્પોન્સ ના આપ્યો એટલે એબ્સન્ટ સમજી લેવાનું, પછી ફોન ના કરતા મને કે સર મારી પ્રેઝન્ટ આપજો. રાઈટ, ઓકે. સો what we are discussing is that is this method are suitable to you or either we should stick to the PPT. આ મેથડ જે છે તમને પસંદ આવે છે ડિસ્કશન બેઝ કે પછી આપણે PPT માં ચાલુ રાખીએ? सर डिस्कशन बेस सही है ना? सर डिस्कशन बेस्ट है बेस सर, यही डिस्कशन सर. Okay, so you can write your opinion PPT or discussion, because the discussion जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. मतलब बुक के लिए तो बुक में से जो है आप PPT रिफर कर सकते हैं, आप अपना वो ओपिनियन लिख सकते हैं उसमें कि whether you are going for the PPT or you will simply say the discussion, right? So more fruitful will be the discussion, because if you I am assigning the task every session, okay, and you will be as a part of the learning, right? आप कुछ इनपुट लाएंगे, कुछ हम आपको देंगे और उसके बेसिस पे हम जो है वो PPT जो है हम तो है ही, PPT तो है ही हमारे लिए, ठीक है. लेकिन डिस्कशन जो बोल रहा है उनको काम भी करना है, ठीक है. आप बोलेंगे मुझे नहीं आता है तो मैं क्या बोला हूँ, आपने नहीं किया है तो ठीक है. तो दैट इज द केस. સો મેજોરિટી આમાં છે કોઈ PPT વાળું? તો PPT ની સ્લાઇડ જે છે એ રીતે આપણે રાખશું. So I think majority you are going with the discussion. Why? Because you will get the important knowledge. Every time I am assigning the task and you need to work for that. And after that in the next session we will discuss that. Okay. So it is more fruitful when you come to the class. ठीक है, जब आपका फिजिकल क्लास चालू होगा तब जो है हम और डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे रादर देन इन ऑनलाइन, ठीक है. तो सेशन तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं जो आज का जो PPT का था वो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि हम क्या डिस्कस करने वाले थे. कि हमारा ही सेशन है, ठीक है. तो एडवांस सर्विंग का जो सेशन है वो हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेते हैं, ठीक है. सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप 1943 में चले जाइए, तब आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी और तब आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. तब उनके इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर की मीटिंग हुई नागपुर के अंदर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे. और जैसे आपने डिस्कशन किया अपने हिसाब से, उसके हिसाब से वहां पे भी डिस्कशन हुआ. तो उन्होंने 4 कैटेगरी में ये रोड्स बनाए: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड. उसके अलावा उन्होंने एक टारगेट सेट किया. कौन सा टारगेट सेट किया? द कमिटी प्लान टू कंस्ट्रक्ट 2 लाख किलोमीटर रोड्स अक्रॉस द कंट्री विद इन द 20 years. ठीक है, तो 20 साल में हमें 2 लाख किलोमीटर रोड लेंथ बनाना है. उन्होंने वो टारगेट सेट किया. इसका मतलब यह हुआ हर साल में कितना किलोमीटर रोड बनाएंगे? 20 साल में 2 लाख है, ठीक है. तो 20 साल में कितना बनाएंगे? मतलब एक साल में कितना रोड हमें बनाना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही है. Am I not audible? Yes sir, audible sir. Okay, so I think the screen is not visible to you. सर Okay. 17,000. यहाँ पे आप देख सकते हैं द कमिटी. आप अब देखिए, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि कमिटी हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट द 2 लाख किलोमीटर रोड अक्रॉस द कंट्री. हमने पहले एम सेट किया 1943 में, 1963 तक हम 2 लाख किलोमीटर का रोड बना लेंगे, राइट. तो इसके हिसाब से एक साल में कितना बनाना पड़ेगा हमें?
1 lakh, हाँ 1 lakh सर, 1 lakh. अरे एक वर्ष में 1 लाख 10,000 बनाओ तो 2 वर्ष में 2 लाख થઈ જાય 10,000 10,000 होगा सर। हाँ 10,000। तो आपका टारगेट कितना सेट हुआ? हाँ 10,000 सर, कि हम हर साल हम 10,000 किलोमीटर का रोड बनाएंगे, जो हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर पर्पसेस के जो लोकेशन है उसको कनेक्ट करेगा। इसके अलावा उसमें एक पैटर्न भी फिक्स हुई कि स्टार और ग्रिड पैटर्न। ठीक है, तो स्टार पैटर्न जो मैं आपको दिखा देता हूं और ग्रिड पैटर्न भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये स्टार पैटर्न है, दिख रहा है, क्योंकि इट इज लुक लाइक ए स्टार। स्टार फिश आपने अगर देखी है, राइट, तो ये दिस इज द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ओके, दिख रहा है। तो पैटर्न भी फिक्स की गई कि हम मेजोरिटी जो रोड बनाएंगे ना वो इसी पैटर्न में बनाएंगे, स्टार और ग्रिड पैटर्न में। ठीक है, और पैटर्न भी है वो हम अलग विषय है। ठीक है, हेक्सागन पैटर्न है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न है, ठीक है, और सर्कुलर रिंग पैटर्न है। ठीक है, लेकिन वो सारे पैटर्न्स जो है वो उसमें से पहले क्या डिसाइड हुआ, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन कम थी, हमारे पास एक्सपीरियंस कम था, हमारे पास टेक्नोलॉजीज का एडवांटेज नहीं था, तो ये स्टार और ग्रिड पैटर्न जो है वो हमने पैटर्न फिक्स कर दी। ठीक है, और इसी तरह आपको जो है स्टार और ग्रिड पैटर्न फिक्स हुई, और हमने ये डिसाइड किया कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज रोड लेंथ शुड बी इंक्रीज सो दैट टू गिव ए रोड डेंसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। जैसे हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में डेंसिटी आती है, वैसे ही रोड की भी डेंसिटी होती है। रोड डेंसिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपने एक स्क्वायर बनाया, मैप पे आपने ये स्क्वायर बनाया और उसकी लेंथ रखी आपने 10 किलोमीटर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और 10 किलोमीटर ऑन वाई एक्सिस, तब कितना एरिया हुआ? 100 किलोमीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं? 10 इंटू 10, यस 100। राइट। तो उसमें आप 10 किलोमीटर एक्स एक्सिस पे चलिए, 10 किलोमीटर वाई एक्सिस पे चलिए, उनका जो स्क्वायर बनता है उसमें एक फिक्स किया गया कि उसमें अगर आप रोड की लेंथ मेजर करेंगे तब वो 16 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी कि इसमें को जो भी रोड नेटवर्क है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो उस रोड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 16 किलोमीटर। ठीक है, तो आप मैप में जाके ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर बनाइए, उसकी रोड लेंथ मेजर कर लीजिए, तो 16 किलोमीटर होनी चाहिए। वो टारगेट सेट किया गया, ठीक है, 1943 में, कि हम हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 16 किलोमीटर की रोड डेंसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोड डेंसिटी का यूनिट क्या है, तो रोड डेंसिटी का यूनिट जो है वो आपका होगा किलोमीटर लेंथ पर एरिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किलोमीटर किलोमीटर निकल गया। ठीक है, तो रोड लेंथ किलोमीटर है और एक एरिया में यूनिट एरिया में कितनी आप, वो भी किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रोड डेंसिटी की बात करते हैं तब आप ये किलोमीटर किलोमीटर यहाँ से उड़ेगा नहीं, ठीक है, कैंसल आउट नहीं होगा, क्योंकि आप रोड डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई मुझे रोड डेंसिटी का यूनिट में पूछो तो 1/किलोमीटर नहीं बताएगा, उनको क्या बताना है कि सर रोड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितने किलोमीटर का रोड पर्टिकुलर एरिया में है, एक यूनिट एरिया में है। तो आप उस स्क्वायर को छोटा कर सकते हैं, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट क्या सेट किया गया कि 100 किलोमीटर का आप बॉक्स बनाएंगे मैप में, उसमें हम 16 जो है 16 या फिर 16 किलोमीटर का रोड जो है हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक टारगेट सेट किया गया। सो मोटा मोटा कितने टारगेट सेट किए गए कि पहले तो हमें हर साल 10,000 किलोमीटर रोड बनाना है, 10,000। ठीक है, फिर उसकी पैटर्न भी हमने फिक्स कर दी, स्टार और ग्रिड पैटर्न। ठीक है, देन हमने डेंसिटी फिक्स कर दी कि इतने रोड तो बनने ही चाहिए। आप 10 किलोमीटर एक्स एक्सिस पे चलिए, 10 किलोमीटर वाई एक्सिस पे चलिए, तो उसमें उसका जो स्क्वायर बनता है उसमें आपको 16 किलोमीटर के रोड होने चाहिए। समझ में आ रही है बात?
यस सर। फर्दर, हाँ फर्दर जो है बॉम्बे में, उसी तरह बॉम्बे में भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड हाईलाइट कर दिया है, वो याद रखने हैं आपको, ठीक है, जो बोल्ड कलर के है। तो मैं आपको पूछूंगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नागपुर रोड प्लान, तो आपको ये स्लाइड में जो मेंशन किया है वो सभी चीजें मेंशन करनी है। अगर मैं आपको कहूँ कि गिव द डिस्क्रिप्शन एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द नागपुर रोड प्लान, व्हाट इज देयर इन द नागपुर रोड प्लान, एक्सप्लेन इन डिटेल, तो आपको ये सारी डिटेल आपको लिखनी है, ठीक है। तो नागपुर रोड कांग्रेस इन 1943 उन्होंने एक प्लान बनाया, फर्स्ट 20 ईयर प्लान। उन्होंने वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड में। और उन्होंने ये 3 टारगेट सेट किए, 2 लाख किलोमीटर इन 20 ईयर्स, टारगेट पैटर्न होगी, और रोड डेंसिटी जो है वो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर होगी। इसी तरह आपको बॉम्बे रोड कांग्रेस में भी मिल जाएगा, ठीक है। वो सेकंड 20 ईयर प्लान था, ठीक है, 1961 से 1981, ठीक है। तो अब जो है हमने टोटल जो है 2 लाख पहले था, ठीक है, 2 लाख हमने 1943 से लेकर 1961 तक बनाए, और हमने अब टारगेट कितना कर दिया, 10 लाख। तो इस 20 ईयर प्लान में हमने टोटल 8 लाख किलोमीटर जो है, राइट, वो हमने टारगेट सेट किया। उसी तरह डेंसिटी भी इंक्रीज की, और अलोंग विद दैट एक्सप्रेस हाईवेज विल बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो मैं आपको ये ब्रीफ में बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरह लखनऊ में भी एक मीटिंग हुई 1981 में, 1984 में, ठीक है। वो प्लान किया 1981 से लेके 2001 तक, ठीक है। तो उन्होंने भी फिर कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो आपका टास्क ये है अगले सेशन में कि मैं जब आपको कंपैरिजन पूछूं कि नागपुर, बॉम्बे, ओके, और लखनऊ, ठीक है, उन तीनों का कंपैरिजन का जो है चार्ट मुझे आपको आपके बुक में लिख के बताना है। आप ये पढ़ सकते हैं, ई कंटेंट में अवेलेबल है, ठीक है। तो आपका टास्क क्या है अगले सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए कौन सा टास्क है, ये बुक, जस्ट ए मिनट, हाँ, कि आपका टास्क ये है कि आपको तीनों जो 20 ईयर प्लान है उसका कंपैरिजन का टेबल आपको मुझे दिखाना पड़ेगा, जिसको भी मैं पूछूं उसको समझाना पड़ेगा। ये पढ़ के आना है, क्या कौन सी स्लाइड पढ़ के आना है कि ये जो है 1943 वाला, ठीक है, फिर 1961 वाला जो बॉम्बे रोड कांग्रेस हुआ था, ये आपको पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और थर्ड लखनऊ रोड कांग्रेस और लखनऊ रोड प्लान। तो उस तीनों के बीच में कंपैरिजन क्या है वो आपको नेक्स्ट सेशन में आपको जो है वो डिटेल में देना है। वो कैसे आप बनाएंगे, मैं आपको एक फॉर्मेट भी दे देता हूं कि आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। मैं आपको एक पैटर्न दे देता हूं कि आप जो है स्केल से अपने वो 3 हिस्सों में बांट दीजिए अपने पेज को, ठीक है। आपने स्केल लिया और पेज को जो है ऐसे है 3 हिस्सों में बांट दीजिए, एक्चुअली 4 हिस्सों में बांटना है आपको। कैसे बनाना वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 1, फिर थोड़ा ये आपको लैंडस्केप में बनाना होगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2, ऐसा आप डिवाइड कर दीजिए अपने पेज को, ठीक है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम बनानी है। ये मुझे टेबल चाहिए आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। मैं इतना रखता हूं। फिर आपको क्या करना है कि
ऐसे या फिर आप लिख दीजिए कि पहले कॉलम में आपको लिखना है पैरामीटर या फिर इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, राइट। तो पैरामीटर को आप लिखिए और उसको पहली कॉलम में यहाँ पे फिक्स कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वापस से आपको क्या करना है, ऐड कीजिए 20 ईयर, फर्स्ट 20 ईयर, ठीक है। ऐसा ही लिखना होना चाहिए, ठीक है। तो पहले कहाँ था, नागपुर, तो आप यहाँ पे एक कॉलम में ये लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड 20 ईयर प्लान, आपको ईयर भी मेंशन करना है, ठीक है। सेकंड, ठीक है, कहाँ तक था, 1961 से 1981 लेटर से, राइट। ऐसा आप एक और कॉलम में नाम लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा, थर्ड 20 ईयर प्लान भी लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लिखते जाइए अपने नोटबुक में, ताकि कल जो है मैं पूछूं आप ब्लैंक ना रहे, ठीक है। सो फ्रॉम 1981 टू 2001, राइट। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है उसमें क्या है, फर्स्ट 20 ईयर प्लान में डेट कौन सी है आपको, 1943, 30 से लेकर 63 तक। सर 61 तक ही है वो। हाँ, प्लान 41 से 20, हाँ 60। प्लान 20 ईयर का हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पे रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि वो 2 साल पहले खत्म हो गया, ठीक है। so that's why, okay, so you can mention 61 also, okay, don't worry, ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना है और कंपैरेटिव टेबल बनाना है। आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनेट पे फाइंड कीजिए या फिर आप बुक रिफर कीजिए या फिर पीटी रिफर करिए, ठीक है। तो दूसरा वाला कहाँ पे हेल्ड था, बॉम्बे में। कोई मुंबई नहीं लिखेगा, उस टाइम बॉम्बे था, तो हमने बॉम्बे ही लिखना है, ठीक है। और थर्ड जो है वो कहाँ था, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो है, ऐसा आपने लिख दिया। अब आपको पैरामीटर क्या लिखना है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया रोड लेंथ, ठीक है। तो रोड लेंथ का टारगेट कितना था, तो आपको यहाँ पे लिखना था सर पहले 2 लाख किलोमीटर था, ऐसा करके आपको यहाँ पे लिखना था 2 लाख। फिर टारगेट कितना हुआ, 10 लाख। टारगेट कितना हुआ था, 10 लाख। समझ में आ रही बात, किस तरह से आपको बनाना है। वैसे कुछ थर्ड में भी होगा। उसके अलावा आप रोड डेंसिटी, लेंथ की जगह रोड डेंसिटी है। ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज आप कंपेयर करोगे तभी आपको याद रहेगी। रोड डेंसिटी का यूनिट भी लिखना है आपको कि सर रोड डेंसिटी जो है वो किलोमीटर होता है लेंथ में, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया होता है। तो वो कितनी थी, तो सर पहले में तो 16 थी, ठीक है, 16 थी। दूसरे में सर 32 हो गई, ऐसा, ठीक है। ऐसा आपको जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, सारे पॉइंट 7 या 8 पॉइंट है जो भी है वो आपको लिखना है। समझ में आई बात। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन, लिख सकते हैं कि फर्स्ट 20 ईयर में क्या क्लासिफिकेशन था। सो रोड क्लासिफिकेशन कैन बी योर पैरामीटर, राइट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि उस टाइम जो है वो रोड क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने इस तरह से किया था कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन नेशनल हाईवेज, ठीक है, स्टेट हाईवेज। तो आधा तो काम मैंने आपको कर दिया, ठीक है। आपको सिर्फ ये पढ़ के आपको लिखना है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स,
और विलेज रोड्स, ये उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था। यहाँ पे आप लिख दीजिए, राइट। फिर ये क्लासिफिकेशन का एक हो गया, और एक और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करके आपको पूरा टेबल कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। क्योंकि हमने ये थर्ड वाला तो आपने सीखा नहीं, वो आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको ऐसा एक टेबल जो है अपनी बुक में बनाना है, और वो टेबल जो है आप लाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। वाह भाई वाह, इसमें तो हो गया अच्छा सा बॉर्डर, जैसे मैंने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हैं। फिर पैटर्न, रोड पैटर्न, पैटर्न कौन सी यूज की थी वो आप पढ़ेंगे, तब आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सी पैटर्न है। वो सारी पीपीटी आपको अवेलेबल है कंटेंट में। कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो ये टास्क आपको करके लाना है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स है तो आपको ऐड करना है। क्लियर? कोई डाउट है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस तरह से मुझे बनाना है, ठीक, और कैसे मैं प्रिपेयर करूंगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क्स है वहां पे आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, राइट, यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मार्क्स जहां जहां मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, वो आपको फिल करके लाना है। इतना ही नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी है, आप पॉइंट्स ऐड करते जाइए। जैसे आप पढ़ेंगे वहां पे आप एक पॉइंट ऐड कर दीजिए। अगर मान लीजिए वो थर्ड प्लान में ही है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो वहां क्या कर देंगे आप, डैश कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक्सप्रेस हाईवे का प्रोविजन, एक्सप्रेस हाईवे जो फर्स्ट में नहीं था तो उसमें डैश कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? तो एक लाइन और भी आप खींच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐड कर दीजिए कि नेशनल हाईवे जो है वो प्रोविजन इसमें नहीं था, तो वहां पे आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर डैश कर दीजिए, या फिर नॉट एप्लीकेबल। whenever you don't find any comparison between these two, जो कंपेरेबल नहीं है उसमें आप एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दीजिए, रो ऐड कर दीजिए, और उसके बाद ऐड कर दीजिए अपना जो भी डिटेल है। कोई डाउट इसमें? क्योंकि टास्क मैंने आपको दिया है तो लंबा होगा, ठीक है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यही हम चेक कर रहे हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? एनी डाउट्स? नो किसी को डाउट कोई सर। डाउट है? ओके, सो आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स, कि जो मुझे आपको पढ़ाना था, क्योंकि हम डिस्कशन बेस पे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वर्क मुझे देना होगा, उसके आधार पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सर वर्क लाना स्क्रीनशॉट है, बाकी है तो ले लो। एवरीबडी टेक द स्क्रीनशॉट। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो ये वाला जो इमेज है वो मैं भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, ताकि हम जो है अगले सेशन में यही डिस्कस कर पाए। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और आई होप दैट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो दिस विल बी द बेटर वन, ऐसे आप अच्छे से सीख पाएंगे इसे, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया, क्योंकि हम जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तब ये स्लाइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब पहली स्लाइड आपके सेशन से पहले ये वाली स्लाइड होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है। तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्लियर? तो आई होप दैट कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी मुझे पूछिए, क्योंकि हमें अब एडवांस सर्विंग का सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। क्लियर? तो आप एक काम कीजिए अभी, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है, या रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको दूसरी लिंक अभी व्हाट्सअप करता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें से लेफ्ट हो जाइए ताकि हमारी अटेंडेंस भी ऐसे बने रहे, ठीक है।
और जो पहले सेशन में नहीं था और अभी ज्वाइन किया है, जैसे उन्होंने कहा है, ठीक है, वो उसकी अटेंडेंस इस सेशन में नहीं आएंगी, ठीक है, उसकी अटेंडेंस सेकंड सेशन में आएंगी, ठीक है। तो आप लीव कर सकते हैं, आपने रोल नंबर तो पहले ही लिख दिया है। मैं वापस से अभी 5 मिनट में आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाए, ताकि ये रिकॉर्डिंग हमारे अलग अलग सेशन के लिए रहे, ठीक है। सो आई एम टर्निंग ऑफ दिस मीटिंग, ओके, जस्ट लीव एवरीबडी, ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में भेजता हूँ, ठीक है। क्विकली क्विकली आप लेफ्ट हो जाइए सभी, एवरीबडी। आई एम सेंडिंग अनदर लिंक फॉर एडवांस सर्विंग सेशन, ओके, जस्ट लीव द मीटिंग। Everybody quickly leave quickly, otherwise I need to remove you and you join once again. Quickly remove, left the meeting. Leave the meeting is Deepesh and Jainam. I am removing you, okay, so that we can start another meeting. Deepesh, you can leave the meeting. Kripal, you can leave the meeting.